Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video, we'll solve one sample paper, and this is paper number 1, which is released by the CBSE for the session 2021-22. So it is MCQ based. So maximum marks are 40 and the time allowed is 90 minutes. So some instructions are there. So this paper is prepared by the team of teachers at My CBSE Guide. And it contains 40 questions including MCQ, case study and assertion and reasoning. So third is My CBSE Guide. Questions 1 to 30 are based on multiple choice questions, and 31 to 35 are based on assertion and reasoning questions. Then 36 to 40 number questions are based on case study based questions. So let's start from the first question. So the first question is the LCM of 24, 60 and 150. So for finding the LCM, we have this long division method. So it is going with 2. So 12 to the, so 30, and here it is 75. Again with 2. So 6, 15 and then 75 only. Again with 2 it is going. So 3, 15 and 75. So with 3 it is going 1 and 5 and then 25. Then with 5 it is okay, then again with 5. So you can see what is LCM. 5 5s are 25, 3s are 75, 2s are 150, 2s are 300, 2s are 600. So 600 is the LCM. So the next question is, if the line given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel, then the value of k is what? So for parallel lines, you know, A1 over A2 is equal to B1 over B2 does not equal to C1 over C2 is the condition. So let's fill here. A1 is 3, A2 is 2 is equal to B1 over B2 is 2k over 5 is come. So we have to solve this much only. So it becomes 2 2s are 4. So cross multiply करेंगे तो 4k and is equal to 15. So k is 15 over 4 answer will come, right? So C option is correct here. So the third question is, in the given figure ABO, this is ABO triangle similar to triangle DCO. So these two triangles are similar and CD is 2 centimeter. So यहाँ पे भी मैं बना लूँ इसको. So this way, okay. So here CD is 2 centimeter, AB is 3 centimeter, OC is 3.2 centimeter. Right, OD is 2.4, then here which are true. So if these two triangles are similar, then by CPST the sides will be in the same ratio. तो sides के ratio हम same लेंगे. तो देखिए अगर मैं AB लिया तो इसका side आ जाएगी CD, and if I take the side of this as OB तो इसकी side आ जाएगी OC, and here if I take the side as AO then it will come OD here. So sorry, it is here. So AB is 3, CD हमारे पास 2 है, OB अभी हमें फाइंड आउट करना है, एंड OC is 3.2 and AO is to be found out. Then we have OD is 2.4. ठीक है, तो यहाँ से हम OB निकाल देंगे. तो देखिए 2OB is equal to this is into 3, so 9.6. So OB will be 4.8 आ जाएगा बच्चों. ठीक है, OB 4.8 आ गया. अब इन दोनों को कंपेयर कर लो तो AO भी आ जाएगा. सो फ्रॉम हेयर AO over 2.4 is equal to 3 over 2. इन दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो. सो 2AO is equal to this into 3, 7.2. सो AO is 3.6 आ जाएगा डिवाइड करके. OB 4.8 and AO 3.6. So this is C option is correct here, you can see. So the fourth question is, the pair of equations x is equal to 2 and y is equal to minus 3 has these options. So let's draw these. देखिए x is equal to 2. This is a line parallel to y axis at a distance of 2 units, याद रखना. So y axis के parallel 2 units पे, ये देखो यहाँ पे ये line है x is equal to 2. ठीक है, and y is equal to minus 3 is a line parallel to x axis at a distance minus 3 units from origin. तो नीचे की तरफ minus 3 units. तो this is your y is equal to minus 3. So these are cutting at this point minus 2 comma
सॉरी 2 कॉमा -3 पे ये कट करेंगी, ठीक है। तो हेयर नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, येस इट इज़ वन सोल्यूशन हेयर, दैट सोल्यूशन इज 2 कॉमा -3, ठीक है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन, इफ cos alpha plus beta is 0 then sin alpha minus beta is what? So let's find out. So cos alpha plus beta is a 0. You know 0 where cos is 0? Cos is 0 at 90 degree. So it means मैं 0 की जगह 90 लिख रहा हूँ. So here alpha plus beta हमारे पास आ जाएगा 90, right? So from here you can find out alpha is equal to 90 minus beta. So यहाँ पर आप भर दो sin अल्फ़ा की जगह भर दो 90 माइनस बीटा एंड माइनस बीटा इज अगेन देयर. सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू. 90 माइनस 2 बीटा एंड यू शुड नो 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो कॉस 2 बीटा विल बी द आंसर. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600 and HCF is 5. What is LCM? You should know that LCM into HCF is equal to product of the numbers. राइट हमारे पास ये फॉर्मूला है. सो यहाँ पे HCF 5 है तो LCM आ जाएगा 1600 ओवर HCF. HCF इज 5. सो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 320 LCM आ जाएगा जी. सो दिस इज डी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन. इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. सो दिस इज हाउ टू डू. सी हेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 2. हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा. सो आप एक काम करो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो. अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए. सो माइनस दिस इज बी, दिस इज ए इज 1 हेयर. सो माइनस बी ओवर ए इज -6. सो अल्फा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए. सी इज 2 एंड ए इज 1. सो 2 ओवर 1 आ जाएगा. सो नाउ वी आर टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. सो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. सो टेक एलसीएम. अल्फा इंटू बीटा इज एलसीएम. सो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा. सो अल्फा प्लस बीटा इज हेयर -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 2. तो कटिंग करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा आपका. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. सो द 8th क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड. ओके सी हेयर, ये है आपकी कॉर्ड, ये कॉर्ड है एंड ये आर्क है. इनके बीच के इस एरिया को बोलते हैं सेगमेंट. क्या बोलते हैं? सेगमेंट. So A option is correct here. So 9th question is a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 6 is what? So देखिए अगर दो zeros दी हैं तो सबसे पहले हम इनका सम निकाल लेंगे. zeros का सम निकाल लेंगे, फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे. तो अगर हम सम निकाल लेंगे तो ये 3 आ जाएगा. प्रोडक्ट निकाल लेंगे इनका तो -18 आ जाएगा. तो हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p. s इज सम एंड p इज प्रोडक्ट. So x square minus 3x plus p plus -18 is -18. So x square minus 3x minus 18 is x square minus 3x minus 18. So I suppose here this is also not, this is also not, this is also not. So this may be. So सबको हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं ना. सबको 6 से डिवाइड कर दो. इसको भी कर दिया, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो x/2 आएगा ना. तो x/2 आ गया. इसको 6 से करेंगे तो 1/3 आएगा. तो मेरे ख्याल से 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, नॉट 1/3. सो x स्क्वायर ओवर 6 माइनस x/2 माइनस 3. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सी हियर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो द 10th क्वेश्चन इज कमिंग नाउ. सो 10th इज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ये परपेंडिकुलर है. सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू BC स्क्वायर. ठीक है, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो लेट्स सी. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम ऐसे करते हैं, इनकी साइड्स अज्यूम कर लेते हैं. 2A साइड्स ले लेते हैं. तो ये 2A बन जाएगी, 2A बन जाएगी. इक्विलेटरल है ना, तो ये भी 2A बन जाएगी. तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑल्टीट्यूड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस. तो ये 2A है तो ये AA बन जाएगा. ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर. तो लगाइए. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. सो देखिए AB स्क्वायर इज 2A का होल स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर बन जाएगा. BD इज A स्क्वायर बन जाएगा प्लस AD बन जाएगा आपका AD स्क्वायर ओनली. तो यहाँ पे ले आएंगे तो 3A स्क्वायर बन जाएगा AD स्क्वायर, राइट. सो हेयर 3 इंटू, नाउ A को मैं क्या भर सकता हूँ? A इज BC ओवर 2 है ना, BC का हाफ है ये.
तो बी सी ओवर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी 3, ये 4 बन जाएगा एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। सो यहाँ से आप देख सकते हो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 बी सी स्क्वायर। सो 3/4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। So 3/4 B option is correct here. So 11th question is the probability of selecting a queen of diamond when a card is drawn from well shuffled pack of 52 cards. So देखो 52 कार्ड्स में जो क्वीन है वो 4 होती हैं, पर डायमंड की तो एक ही होगी, ठीक है। तो 1/52 आएगा इसका आंसर, ए करेक्ट आंसर। सो HCF ऑफ 72 एंड 120 इज 24, फाइंड द LCM। देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF इज 24 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आर 72 एंड 120, ठीक है। सो LCM हमारे पास आ जाएगा 72 इंटू 120 ओवर 24 आई थिंक 5 जा, ठीक है। तो 72 5 जा 360 आ जाएगा जी। D option is correct. So the 13th question, if a line meet the circle in 2 distinct point is called। देखिए अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मीट करे तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट। याद रखो इसे क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं इसको। तो C option is correct here. 14th is if the perimeter of a circle is equal to the that of a square, then the ratio of their areas is what? So here perimeter of the circle, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 pi r is equal to the that of the square। तो स्क्वायर के अपने स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, दैट इज 4 इंटू साइड। सो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 pi r ओवर 4 दैट इज pi r ओवर 2। अब हमें क्या निकालना है, इन दो चीज़ों के एरियाज का रेशो। तो एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर ओवर साइड कितनी है यहाँ पर, पाई आर ओवर 2 है ना, पाई आर ओवर 2 का स्क्वायर ये निकालना है हमें। तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कट के पाई से पाई कट के 4 ओवर पाई आ जाएगा, 4:पाई विल बी कमिंग हेयर, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज two isosceles triangles have equal angles and their areas are in the ratio 16:25. Then what is the ratio of their corresponding heights? तो देखिए अगर दो isosceles triangle के angles equal हैं तो वो similar होंगी आपस में, because अगर 2 angles और 3 angles of 2 triangles are equal then these are similar। अगर ये दो triangles सिमिलर होगी तो उनके एरियाज का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स, ओके। सो इट मीन्स दिस विल बी एरिया, दिस इज एरिया, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा एरिया बराबर हाइट्स के स्क्वायर के बराबर। सो हाइट ये आ जाएंगी है ना। सो दिस इज 4/5, तो हाइट्स विल बी 4 and 5, राइट, बिकॉज एरिया होगा, एरिया जो है वो हाइट्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो 4/5 मीन्स हाइट्स का रेशो आ गया 4:5। दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। सो 16th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा cos 90 माइनस थीटा ओवर cot 90 माइनस थीटा। तो देखिए cos थीटा cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा ओवर cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, राइट। सो आपको ये भी पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा होता है, ठीक है। sin कट cos इंटू cos इज cos स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो द 17th क्वेश्चन कमिंग नाउ। 5 years hence the age of a man shall be 3 times the age of his son। सो एक काम करते हैं, प्रेजेंट एजेस अज्यूम कर लेते हैं। मैन की प्रेजेंट एज x मान लो, सन की प्रेजेंट एज y मान लो ईयर्स में, ठीक है। वी आर डूइंग हेयर MCQ, सो सॉल्विंग रफली लाइक, ओके। सो अब क्या बोलता है 5 years हैंस, तो मैन की तो आ गई x+5 और सन की आ गई y+5। तो बोलता है एज ऑफ मैन शैल बी 3 times द एज ऑफ द सन। तो मैन एज इज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ सन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 15 - 5 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोलता है, एंड
वाइल 5 years अर्लियर, 5 साल पहले, तो चलो पहले 5 साल पहले की एजिस निकालते हैं, ये मैन की होगी, ये सन की होगी। 5 years अर्लियर क्या था, मैन वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो मैन इज इक्वल टू 7 times। तो यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हो। सो दिस बिकम्स x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ठीक है, सो सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, हमें क्या पूछा है, प्रेजेंटेज ऑफ मैन। तो चलिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस प्लस कट, ये बन गया 4y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू 20 over 5, 4 is 5। तो y तो आ गया 5 मीन्स एज ऑफ सन इज़ 5। सो अब हम क्या करेंगे, सन की एज कहीं पे भी भर देंगे, चलो यहाँ भर देते हैं y को 5। तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 10, तो x 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सॉरी कोई गलती होगी हमसे, यस सॉरी इट इज़ मिस्टेक हेयर। सो दिस इज सी 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज 40 है ना। सो y इज़ 10, y 10 आना है। ठीक है, अब y को 10 यहाँ भरते हैं, चलिए। तो x माइनस 10 3 ज़ा 30 ओके इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। सॉरी इट वॉज मिस्टेक, सो 40 इज द आंसर। सो लेट्स सी द 18th क्वेश्चन। सो कार्ड्स ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक लिखे गए हैं कार्ड्स पे नाम। सो आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थॉरोली। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद नंबर लेस देन 10। तो देखिए सबसे पहले ये टोटल कार्ड्स कितने हैं। सो यहाँ पे टोटल कार्ड 10 है, आप काउंट कर लो, ये 10 कार्ड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 to 5 मिसिंग है 15 में से, तो 15 से 5 कार्ड मिस हैं, तो 10 ही बचे हैं ना। तो उसमें से 10 से कम कितने हैं, 6 7 8 9 10, 5 कार्ड्स आर लेस देन 10 है ना, सॉरी 6 7 8 9 दीज आर 4 ओनली, 4 कार्ड्स आर लेस देन 10, तो 4। सो 2 over 5 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 2 over 5, right? So first option is correct here. So 19th question is, if HCF A and B is 12 and product of A B is 18, then 1800, then find LCM. So third time this question we are doing in the same paper. So the formula is LCM into HCF is equal to product of the numbers. यहाँ पे number हैं हमारे A and B, ठीक है, these are the numbers. So it is given that product of the numbers is 1800. So ये तो 1800 डायरेक्टली दिया है, LCM हमें निकालना है, HCF is 12. So LCM कैसे आएगा, 1800 को 12 से डिवाइड कर दो, so 12 1 जा 12 5 जा 150 will be the answer. 19th question. So now this is the 20th question coming. So in the given figure ABCD is a trapezium. So this is a trapezium. AB 40 है, this is 40, this is BC 15, okay, CD is 28, कहाँ गया CD, CD this is 20, sorry CD 28 and CE is perpendicular, ये 90 का है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो you should know that what is the area of the trapezium, that is half into sum of parallel sides. What are sum of parallel sides here, 40 plus 28, and what is height, height हमें फाइंड करनी है भाई। ठीक है, तो हम देखो कैसे फाइंड करेंगे हाइट। तो ये तो बन गई रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये 28 है तो ये भी 28 होगा, तो पूरा तो ये 40 है, तो ये 12 बचा, 12 बचा। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये CE निकाल लेंगे। CE स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर तो होता है 225, 14 स्क्वायर 144। सो अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा, तो CE स्क्वायर इज 81, CE 9 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हाइट 9 आ गई। ठीक है, तो चलिए जी कि देखते हैं क्या आंसर आता है, 68 इंटू 9, सो 34 आ गया, 306 आ रहा है, देखते हैं 306 है इसमें ऑप्शन की नहीं। यस, दिस इज 306। नाउ नेक्स्ट इज 21st क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पेपर। So this is if x cube plus x square minus 2x minus 3 is equal to x minus 2 into x square plus ax plus b plus 5, find a and b. So here if you see it is a dividend here, so dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So what we do to find the value of a and b, we will divide this dividend by this divisor x minus 2. Then we can check the what is the quotient coming and then we can compare a and b there. ठीक है, तो हम सबसे पहले इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। सो आई हैव रिटन हियर, सो लेट्स सी x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर टू गेट x क्यूब,
सो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इंटू -2 इज -2 एक्स स्क्वायर, so it will come below the like term only. Sign change, minus plus, so it becomes 3x square, right? So bring down rest all as it is. So x into x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर बन जाए, so that is a 3x only, so plus 3x. So 3x into x is 3x square, so 3x into -2 is -6x. So देखिए sign change, so now it is 6x minus 2x is 4x minus 3. So x को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4x बन जाए, that is 4 plus 4 rather. So 4 into x is 4x, 4 into -2 is -8. So sign change, minus and plus, so it is plus 5. So देखिए remainder is 5 only. So you can compare the this quotient, right? So in place of a it is 3, see here, in place of b is 4, so a is 3, b is 4, answer. So A is 3, B is 4. So D option is correct here. So the next question is 22nd. If triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, that is 13 centimeter. Okay. So length of altitude from A on BC is 5 centimeter. Then what is BC? So see here, this is isosceles triangle, ABC sides. So these are AB and AC, that is 13 centimeter and 13 centimeter. Length of altitude is on BC from A to BC is 5 centimeter, ठीक है। So we need to find out the length of the BC. So सबसे पहले आपको ये पता है कि जो altitude है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो बेस को बाइसेक्ट करता है. इट मीन्स BD एंड CD विल बी इक्वल. सो पाइथागोरस थ्योरम से हम BD निकाल लेंगे. और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से BD क्या आएगा, ओरली हमको पता है 12 आएगा, है ना. मैं करके दिखा देता हूँ कैसे 12 आएगा. सो BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर दैट इज 169 माइनस AD स्क्वायर दैट इज 25. सो BD स्क्वायर बन जाएगा 144. सो BD आ जाएगा 12, राइट. अंडर रूट 144 इज 12. सो 12 आ जाएगा. तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा बिकॉज D इज बाइसेक्टिंग द बेस, AD इज बाइसेक्टिंग द बेस. सो 24 आ जाएगा BC. सो C ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नाउ 23rd क्वेश्चन इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज. सो अगर आप हमेशा देखो कंसेक्यूटिव नंबर का HCF हमेशा 1 आता है. 3 और 4 का HCF 1 आएगा. 5 और 6 का HCF 1 आएगा. हमेशा 1 आता है. दैट यू कैन सी 1. If tan theta is √3 then what is secant theta? तो देखिए tan theta √3. √3 आपको पता है tan कब होता है. We know tan 60 डिग्री पर √3 होता है. ठीक है. सो इट मीन्स थीटा यहाँ से 60 आ गया. ठीक है. तो secant 60 की वैल्यू निकालनी है, secant 60 की. सो दैट वी कैन फाइंड आउट. सो secant 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द cos 60. तो cos 60 का तो हमें पता है इट्स वैल्यू इज 1/2. तो secant 60 की 2 हो जाएगी वैल्यू. Right, so B option is correct here. So 25th question, a system of linear equations is said to be consistent if it has. तो देखिए consistent तब होता है सिस्टम जब या तो एक सोल्यूशन हो या फिर many solutions हो. तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर चाहिए, one or many solutions. Okay, B option is correct here. So चलिए जी 26th क्वेश्चन पे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. सो पहले यहाँ बना लें ट्रायंगल्स, तब बात करते हैं आगे. ABC and DEF are similar triangles. AB है 9.1, DE है 6.5. If the perimeter of triangle DEF is 25, then what is the perimeter of ABC? So always remember, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके जो साइड्स का रेशो होता है वो ही उनके पेरीमीटर्स का भी रेशो होता है. ठीक है. तो देखिए साइड्स का रेशो कितना है. साइड्स का रेशो है AB की साइड AB ले ली मैंने, दैट इज 9.1 एंड DE की साइड 6.5 ले ली, इज इक्वल टू AB एरिया ऑफ ABC ले लिया. ठीक है. ओवर एरिया ऑफ DEF 25 ले लिया. तो यहां से आपने देखा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके जो साइड्स का रेशो होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, वही ट्रायंगल के एरियाज का रेशो भी होता है. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये यहाँ चला जाएगा. सो 9.1 इंटू 25 ओवर 65. तो ये डेसिमल तो कट जाएंगे क्योंकि एक एक डेसिमल प्लेस से कट जाएगी. सो 13 से जाएगा. 13 5 जा, 13 7 जा, 5 1 जा, 5 5 जा.
तो ये 35 आएगा कुल मिला के. सो 35 सेंटीमीटर. अगर इफ इट इज सेंटीमीटर देन सेंटीमीटर 35. ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल PQR, angle Q is 90 degree. So I have drawn here angle Q 90 degree. PQ is 5 centimeter. QR is 12 centimeter. Right. So QS is perpendicular to PR. So QS is perpendicular here. So then QS is equal to what? We have to find out the value of QS. So हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे, फिर इनके रेशियोज साइड्स के रेशियो इक्वल ले लेंगे CPST से. ठीक है. सो चलिए ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं. Suppose this I'm taking big triangle and this small triangle है ना. देखिए I'm taking the small triangle as RSQ, right? RSQ means कॉमन एंगल से 90 की तरफ मैंने नाम लिख दिया. तो बड़ी ट्रायंगल का नाम क्या आएगा? कॉमन एंगल से 90 की तरफ, तो RQP आ जाएगा. सिमिलर टू RPQ. हाउ? सी हियर, दोनों के RR एंगल कॉमन है. ठीक है. बड़ी ट्रायंगल का ये 90 है, छोटी ट्रायंगल का ये 90 है. सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय AA. सो नाउ वी विल टेक द रेशियो ऑफ द साइड्स. तो चलिए पहले हम लेते हैं SQ जो कि हमें चाहिए. SQ इसका साइड, तो इसकी PQ आ जाएगी. नाउ इसकी साइड हम RQ ले लेते हैं. ठीक है. तो इसकी साइड अगेन RQ आएगी. एम आई राइट? विद RQ, why these are same? So let me see, have we done some any mistake? Sorry, this name will be RQP, not RPQ. RQP आएगा ना, क्योंकि कॉमन से 90 की तरफ जा रहे हो आप. राइट. सो RQP. अब देखिए इसका SQ तो उसका QP, दैट इज फाइन. एंड इसका अगर मैं RQ लूँ तो इसका RP आएगा. राइट. RP. सो RP हमारे पास नहीं है, पर वी कैन फाइंड आउट RP बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये 13 आएगा RP. ठीक है. तो ये 13 आ जाएगा. तो भर दो वैल्यूज. SQ इज टू बी फाइंड आउट, PQ इज 5, RQ इज 12, RP इज 13. सो SQ विल बी 5 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 12 ओवर 13. सो 60 ओवर 13 आ जाएगा आंसर. सो देखते हैं कौन सा आंसर सही है. 60 over 13. So first A option is correct here. So next question is, if a line segment joining the points 3, 4 and 1, 2 is trisected by P and Q, then A and B की वैल्यू निकालनी है. तो ये देखिए ये लाइन सेगमेंट है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है. Now the 28th question is, if the line segment joining the points 3, -4 and 1, 2 is trisected at the points P, A, -2 and Q 5 over 3, B, then what is A and B? ठीक है. So I have drawn this figure. A is this, B is this. So इन दोनों को ज्वाइन करके AB बना है. P और Q इस AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. ट्राइसेक्ट मीन्स 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. इट मीन्स AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू QB. सो इस क्वेश्चन को हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से. मिड पॉइंट का मतलब है, अगर हमारे पास A कोई पॉइंट है x1 y1 और B कोई पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों और इन AB का जो हमारा मिड पॉइंट है वो फाइंड कैसे करते हैं. तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2. फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड y कोऑर्डिनेट्स इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. तो ऐसे ही हम करेंगे बिकॉज दीज पार्ट्स आर इक्वल. सो AQ को P जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि P इसके मिड में है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें. तो इट इज 3, 5 over 3 plus 5 over 3 divide by 2 is equal to midpoint of these is A. So from here this 2 will go here. So and in calcium ले लो 3 LCM, तो 3 is 9 plus 5 and this 2 will go here 2A. So 14 over 3 is equal to 2A. So A will be 14 over 3 and this 2 will go here, come here down. So it is 6. So 2 ones are 2, 7s are. So 7 over 3 is A. A is 7 over 3. अब B की वैल्यू फाइंड करें. So -4 plus B divided by 2 is -2 this. So it is -4 plus B is equal to -4 multiply करके. So B is equal to -4 plus 4, that is 0. So B is 0 and A is 7 over 3. So here B option is correct.
So 29th question, cos square 30 plus into cos square 45 plus 4 secant square 60 plus half cos square 90 minus 2 tan square 60 is what? So इनकी values हम fill करें. So cos 60 will be under root 3 by 2, that's whole square, into cos 45 is 1 by under root 2 whole square आ जाएगा, plus 4 into so secant 60 का square. So secant 60 is cos 60 का reciprocal. Cos 60 जो होता है 1 by 2, तो secant 60 is 2 plus half into cos 90 square है ना, cos 90 square. So cos 90 is 0, right? So it is 0. So minus 2 into tan 60 square. So tan 60 is under root 3. So let's solve these all. So it becomes root 3 square is 3, 3 by 4 into 1 by 2 plus 2 square 4, 4 is a 16 plus 0, no need to write here 0. So minus root 3 का square is 3, 3 2 is 6 आ जाएगा, ठीक है. So यहाँ कटिंग है नहीं, चलो ठीक है, 3 over 8 आ गया and plus it is 16 minus 6 is 10. So 8 is LCM, so 3 plus 10 8 is 80, so 83 over 8. So C option is correct here. So the 30th question and the last MCQ, and it is, if 1 0 of the quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then find the value of k. So देखिए अगर 1 0 is 2, तो it means अगर हम x की जगह 2 भरें यहाँ पर तो full answer will be 0, ठीक है. तो 0 of a polynomial is that thing, if we fill the value of x that, so we get the value of full polynomial as 0, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 2 भर देंगे. सो बन गया के एक्स स्क्वायर, देखिए के एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा. सो मैंने जहाँ जहाँ भी आपका x आया मैंने 2 भर दिया, इज इक्वल टू 0. सो ये बन गया 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0. सो बन गया 5k और 6 को उधर ले जाओ -6, तो k is -6 over 5. So B option is correct here. So these are the MCQ. Now next questions are assertions and reason. ठीक है. So assertion and reason is first time introduced in the maths subject. So what are these? So assertion means we are given a fact and reason means उसका reason है कि ये इसलिए होते ये चीज़. So एक fact दिया होगा और उसका reason दिया होगा. So we want to tell that which is correct here. ठीक है. Like we have like if I am speaking 2 is a prime number because it has only 2 factors. So 2 is a prime number, that is a fact. Because के बाद जो आया, because it has 2 factors, so ये इसका reason हो गया. So assertion is fact and reason is that जो उसका reason है, ठीक है. तो देखते हैं इन questions में क्या है. For question number 31 to 35, 2 statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the code ABCD as given below. So चलिए जी शुरू करते हैं. 31st question is assertion क्या है? If A and B are two independent event, then it is given that P of A is 2 by 5 and P of B means probability of A is 2 by 5, probability of B is 3 by 5, then probability of A intersection B. A intersection means A and B, okay, and intersection means common thing, ठीक है. तो always remember that A intersection B when A, B are independent event is P of A into P of B. That you will study otherwise in +1 standard. So here you can remember. So यही इसका रीजन सही है, ठीक है. क्योंकि देखो इन्होंने ये मल्टीप्लाई करा है इन दोनों को, 3 2 6, 5 5 25, 6 25. So it means P probability of A intersection B is probability of A into probability of B. तभी तो ये 6/25 आया. तो it is correct. It means assertion का रीजन बिल्कुल करेक्ट है. तो here it is asked that ABCD में हमने पढ़े नहीं अभी. ABCD क्या है? बोलते हैं A में है, अगर ए आंसर देना है आपने तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है ना. अगर असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन. अगर असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं बट वो रीजन जो है वो एक्चुअली इज नॉट द रीजन फॉर दिस असर्शन, तो बी ऑप्शन देना है आपने, ठीक है. एंड सी के लिए हमने कब देना है ये आंसर? असर्शन इज करेक्ट, तब जो आपका फैक्ट है वो करेक्ट है
बट रीजन इज रॉन्ग, पर वो उसका जो रीजन दिया है वो रॉन्ग रीजन दिया है, तो हमने सी ऑप्शन करेक्ट करना है। और डी के लिए अगर असर्शन इज रॉन्ग, जो फैक्ट है वो ही रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है, कोई रीजन दे रहा है तो वो सही चीज है, तो हमें डी ऑप्शन करेक्ट करना है। और ए में ये था कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और जो रीजन दिया है वो बिल्कुल सही रीजन दिया उस चीज के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे ए 31st में जो असर्शन है दैट इज ऑल्सो राइट एंड रीजन ऑफ इट इज ऑल्सो राइट, सो इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 31, ठीक है। अब 32 देखते हैं। असर्शन क्या है, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो चेक कर लेते हैं हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 भरो यहाँ पे n को, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 भर लेते हैं, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 6, हाँ हो रहा है। 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 कितना आ गया, 16 माइनस 4 12, सो 12 आता है 2 के टेबल में, ये आता है। तो मीन्स ये फैक्ट तो सही है, बिल्कुल असर्शन इज फैक्ट, असर्शन इज राइट। रीजन क्या है, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये तो गलत है, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये रीजन इज रॉन्ग है। एंड रीजन, इसका भी रीजन ये नहीं है, है ना, रीजन तो रॉन्ग है यहाँ पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, नहीं, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग, तो सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। असर्शन तो बिल्कुल सही है बट रीजन बिल्कुल गलत है। √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, अच्छा सॉरी √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, आई एम सॉरी, इट इज टोटली करेक्ट बट इसका रीजन नहीं है ये, ठीक है। तो मीन्स असर्शन इज करेक्ट, राइट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट बट रीजन इज नॉट द आंसर ऑफ दिस असर्शन। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, नहीं दो ऐसा नहीं है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, हाँ दोनों करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, यस रीजन इसका नहीं है ये, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, शुड एक्सप्लेन अगेन। सो देखिए हमने देखा कि ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये भी सही स्टेटमेंट है, पर इसकी ये स्टेटमेंट नहीं है, इसका रीजन नहीं है ये, तो इट मीन्स दोनों ही सही हैं बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो बी ऑप्शन। तो थर्ड देखते हैं 33rd, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज 1 देन sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a इज व्हाट। तो ये भी 1 नहीं आता, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो असर्शन रॉन्ग है भाई, ठीक है, मैं आपको चेक करके बताता हूं वाई असर्शन इज रॉन्ग। ये देखिए अगर cos a प्लस cos स्क्वायर a इज 1, तो यहां से cos a इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 1 माइनस cos स्क्वायर a, सो इट मीन्स cos a इज 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर है, तो cos a इज sin स्क्वायर है। तो देखिए cos a इज sin स्क्वायर है, तो ये cos a आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि sin स्क्वायर के बराबर है, और ये cos स्क्वायर a आ जाएगा, तो cos a प्लस cos स्क्वायर a तो 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 2 है, तो असर्शन इज रॉन्ग। देखते हैं ये क्या है, 1 माइनस sin स्क्वायर a इज cos स्क्वायर a, तो ये तो बिल्कुल सही बोला है ना, 1 माइनस sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर a, तो मतलब असर्शन इज रॉन्ग, assertion is wrong but reason is correct, this is fine, ठीक है। सो हमारा ये डी ऑप्शन आएगा इसका। तो 34th देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस इज 2/3। देखो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में कितनी होती है, 1/2 होती है, बिकॉज देयर आर 3 प्राइम नंबर्स 2 3 5 और टोटल नंबर आर 6, तो 3/6 दैट इज 1/2 आनी थी, तो असर्शन इज रॉन्ग। प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई आर 2 3 5, तो ये तो बिल्कुल सही है, प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई आर 2 3 5, बट ये गलत है, ठीक है। सो असर्शन हेयर ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, बट रीजन इज करेक्ट। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी आएगा जी यहाँ पे, ठीक है। एम आई राइट विद डी, रीजन इज राइट, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट, assertion is wrong but reason is correct, तो ये ऑप्शन आ रहा है सही, ठीक है। ओके, सो 33rd में भी यही था ना, नहीं इसमें assertion wrong थी, reason correct था, तो ये भी यही है, assertion wrong थी, reason correct था, ठीक है। ओके जी, 5th क्वेश्चन, सॉरी, x प्लस 4 माइनस x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 and 2x plus ky minus 3 is equal to 0 has no solution if k is 2। तो k2 भर के देखते हैं, k2 भर दो, तो x I'll write here, हम भरेंगे k को 2, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, k को 2 भर देते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस k को 2 भर दिया,
2y minus 3 is equal to 0. नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, x1 over x2 is equal to y1 over y2 does not equal to, sorry, a1 over a2 is equal to b1 over b2 but does not equal to c1 over c2 आना चाहिए. तो ये तो बिल्कुल सही है, ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, तो ये तो असर्शन इज करेक्ट. रीजन देखते हैं. बोलते हैं a1 over a2 does not equal to k1 over k2. It is wrong. Reason is wrong here. Assertion is correct here. So assertion is correct. Reason is wrong. So C will be. Now the next are the case study based questions, and these are from 36 to 40 number questions. So Cartesian plane, using Cartesian coordinates, we mark a point on a graph by how far along and how far up it is. So left right, which is horizontal direction, is called x-axis, and the up down, that is vertical direction, is called y-axis. Based on these facts, a case study is provided below. Read the information and answer the questions that follows. A team of archaeologists is studying the ruins of Lignite, a small mining town from the 1800s. They plot points on a coordinate plane to show exactly where each artifact is found. So they are using this coordinate plane as a map of selection of the town. It shows the location of a medicine bottle M. So here it is medicine bottle M. So its coordinates are 1, 2, 2 comma minus 1. I have written here. So and doorknob D, and its coordinates are minus 3 comma minus 1, and a pottery jug, and its coordinates are 2 comma 4, right. So notice that each unit on the grid is equal to 5 meter. So हर यूनिट जो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस शो कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फॉर अपार्ट आर द डोर नॉब एंड द मेडिसिन बॉटल. सो डोर नॉब और मेडिसिन बॉटल के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ distance formula also, or you can count the distances like this way also. See here 1 unit, यहाँ से चलना है ना, हमने यहाँ तक जाना है. 1 unit, 2, 3, 4, 5 units. तो 5 units means 1 unit is 5 meter, तो 5 units are 25 meter is the answer. ठीक है. तो second is how far apart are the medicine bottle and the pottery jug. So medicine bottle is here, pottery jug is here. So distance कितनी है इनके बीच, काउंट कर सकते हो. देखो 1 unit below the x-axis and 4 unit above the x-axis. तो 4 plus 1 5 unit distance आ जाएगी, काउंट कर सकते हो आप. So 5 units means again 25 मीटर आ जाएगा आंसर. ठीक है. सी ऑप्शन. हाउ फॉर अपार्ट आर द डोर नॉब एंड द पॉटरी जग. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डोर नॉब एंड पॉटरी जग. सो डोर नॉब के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -1 एंड जग के हैं 2, 4. तो इनके बीच की जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला नाउ. सो d इज -3, -1 and j is 2, 4. So we have distance formula, that is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये फॉर्मूला है, तो आप लगा सकते हो यहाँ पर. So this is x2 is this is x1 y1, this is x2 y2. So x2 minus x1, 2 minus -3, that is 2 plus 3 का square, plus 4 minus -1, that is 4 plus 1 का square. So it becomes here now 5 square 25 plus here also 5 square 25. So ये बन जाएगा under root 50, that is 2 into 5 into 5 है ना. तो ये 5 बाहर आ जाएगा. So it will become here 5 root 2 है ना. ये 5 बाहर आ गया तो 5 root 2 बन गया. So यहाँ पे root 2 की वैल्यू भी भर सकते हैं हम. 2.414 आप इसकी सॉरी 1.4 सॉरी एंड दिस वैल्यू वी कैन फिल 1.214. ठीक है. तो ये वैल्यू आप भर सकते हो. सो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.070. ठीक है. सो ये हमारा आंसर आ जाएगा. सो देखते हैं कोई ऑप्शन सही है इनमें. और ओके 6.07, yes, this is the correct option here. So the next question is our 39th question. We are now the coordinates of the jug and medicine bottle. So हमने ये पहले ही फाइंड करे हैं. जग के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2, 4 एंड मेडिसिन बॉटल के हैं 2, -1. So 2, 4 and 2, -1. A option is correct here. So the last is the location of the doorknob. So location of the doorknob is -3, -1. So A option is correct here.
So dear students, this way we have finished this first test paper, first sample paper from the CBSE side. So for other papers also we will be making these videos. So subscribe the channel and give support to these videos. Thank you so much. God bless you.